Okay. So, hello everyone. This is Nitesh Pelani, and we are here to discuss the default setting and enhanced securities. So, I'm just sharing my screen. Is my screen is visible and I'm audible? Yes, you are. Okay. So, here we will go for the settings. So all the settings in your system we have given here. So today we will discuss for the sale return, and the purchase return, where you can manage your all the settings. So we will start from the sales here. So first of all, we have given here the restrict add new items in sales online order edit. So whenever your order come through the online, so your staff can't be edited as per your requirement. You can turn on this setting as if you want to do. And the next thing is log sales bill. This setting we have given, like for example, once your staff had the sales, and if you want to log that sales bill immediately or as per your requirement, we have given the time range as well. So we can do as per your requirement. After that, the lock item accept quantity and discount. While doing the sales, your staff can't edit the things except quantity and discounts. Sometimes what happens by mistakenly or intentionally or unintentionally, staff can changes the batches while sales, so it affects to the ledger as well. So likewise, we have given the settings. So once you turn on this, so your staff only can change the quantity and discount. Next thing is allow negative sales. Probably we are not suggesting this, but in rare cases or any emergency, you can use these settings. For example, if you have do not have stock in your inventory, so in this case only you can do the negative sales. The default payment mode, we are suggesting to do this in a credit mode to manage your all the payments and all. Whenever your staff will make the bill, a default payment mode credit will be there, and once the confirm payment mode from the customer side, after that your staff can change update the payment mode likewise. So the different payment modes we have given, you can set as per your requirements. So these all was the mandatory settings. We can, after that, the one more setting we have given, set customer mobile number secure. So if you want to secure your customer's mobile number, so once you turn on the setting, so how it will reflect when your staff will add the sales, so it will not be able to see the customer's mobile number. So when this setting is, if this setting is on, the customer's number mobile number will be secure like this. So this was the settings. After that, we have given this add margin safety net. For example, once you on the settings, so whenever your margin goes below 3%, so it will give you the alert at the time. So likewise, if the by mistakenly staff has added the more discount, or with the XYZ reason margin is going down, so likewise the alert will be there for the staff. So this all these sales and the rest of the things which we have not discussed here, this was very simple. We can go through it later. So let's go ahead for the sales return now. So the same thing, you can log the sales return bill as well as we discussed in the sales, the default payment mode, and the main things, verify OTP for the sales return. So this settings, how it will work, like for example, whenever customers wants to return the products, so your staff require the OTP from the same customer. So it will be ensure that that is the customer, and the customers wants to return the, actually they want to return the product, and that is done by the staff. So likewise, we have given this setting. For example, to given this function is, your staff can't make the dummy bills as a return as well, so it can be affect your mismatch cash too. The next thing is generate sales return from the sales only, is to manage your sales and sales return properly. So
if you turn on the setting, your staff can't be able to do the manual returns. It can be happen from the generated sales only. If they have had any sales return bill from the same bill, it can be create the return. So from this settings, it can be verified the product, verified the customer too, about they have purchased the particular stores. So next thing is the sales invoice. I think there is a very basic things. The stuff quantity, if you want to show whatever things you want to show on the invoices, whatever you can't want to show. Likewise, you can do all the settings. The mobile numbers you want to show on the invoices, the invoice title, on the discounted price if you want to show. These all are the basic settings. You can go through it. Next thing is purchase. So the log sales purchase bill as well, as we have discussed previously, the same thing is here. And you can set the PO prefix to identify the bills if you are managing the multiple stores. So it will be helpful in it. And some more settings we have given here for the attached PO mandatory. For example, if you are adding the PO and whenever the purchase comes, we want to attach the PO with it. So for that, we have given the settings. Auto fetch purchase from Gmail. For example, if you have turned on these settings, in that case, you don't have a need to add the purchase or add to distributor's name. Once you on the settings, automatically the purchase draft will be there. It can be done by the system automatically. So rest of the things is a very basic, and the default payment for the same is a purchase if you want to set. Likewise, we can set. Next thing is purchase return, the default payment mode, and the log purchase bill if you want to do. And the same thing as we discussed in the sales, if you want to generate purchase return from the purchase only, as per your requirement, you can turn on the setting. Same thing, the allow negative purchase return if you require in rarely cases, so you can use this setting. So let's continue with the B2B sales. Most of the things are similarly we have given in the different provisions. You can see here, like log item, accept quantity and discount and margin. So while adding the B2B sales, your staff can't be able to change the discount, quantity and margins. So it will be work on as a predefined what you have added in your systems. Excuse me. The default payment mode and the local, excuse me. So log wholesale bill as per your requirement, as we discussed, you can log wholesale bill as well, and the wholesale prefix if you want to set, and the margin safety net we have given in the wholesale provision also. So you can use as per your requirement. Same in the B2B return, you can log the wholesale return bill as well, and the wholesale payment mode if you want to set anything as per requirement. Likewise, we can do the settings. So these was the basic setting we have discussed today. If you have any question regarding that, you may ask. Yes, sir, बताइए. Yes, please. एक्चुअली इसमें ये क्यूआर स्टिकर प्रिंट है, मुझे जो नियर एक्सपायरी 3 मंथ्स की हैं उन पे क्यूआर स्टिकर प्रिंट करना है, तो कैसे करूं, मतलब वो बता दीजिए. सर क्यूआर प्रिंट आपको सिर्फ तीन महीने की एक्सपायरी पे ही करना है. मतलब 3 महीने या 6 महीने जो भी, मतलब नियर एक्सपायरी प्रोडक्ट, सर क्योंकि मैं सब पे नहीं लगा सकता, मगर नियर एक्सपायरी प्रोडक्ट पे लगाना चाहता हूँ. मतलब सर इसका रीजन मैं जान सकता हूँ, आप 3 महीने या 6 महीने की नियर एक्सपायरी के प्रोडक्ट पे एक्चुअली क्यों? इसका रीजन ये है कि हमारे पास मेडिसिन बहुत हैं, तो हर एक पे मैं क्यूआर स्टिकर नहीं लगाना चाहता. मैं नियर एक्सपायरी पे, जैसे कि भी सबसे पहले एक स्टिकर लगा होगा तो उस प्रोडक्ट को पहले निकालना है, ये पता लगेगा कि भी क्यूआर स्टिकर से ही पता लग जाएगा कि इसको निकालो पहले. ठीक है. और दूसरा ये है कि जब वो 1 महीने या 2 महीने की पेंडिंग डेट पे आएगा तो हम उसको स्कैन करके डिस्ट्रीब्यूटर्स को वापस कर सकेंगे या होलसेलर को. ये है, बस यही चाहिए था एक तरीके से. सर बट इसमें तो आपको उल्टा डबल मेहनत नहीं हो जाएगी, क्योंकि इसमें आपको हर एक जो भी प्रोडक्ट है, आपको इन शॉर्ट जो भी प्रोडक्ट नियर एक्सपायरी में तो आएंगे ही आएंगे, तो आपको सभी के लिए तो क्यूआर प्रिंटिंग तो करना ही पड़ेगा, राइट?
सो इससे अच्छा है कि आप हमारी जो एक्सपायरी मैनेज करने के लिए हमने जो प्रोविजंस दिए हुए हैं, जैसे कि एक्सपायरी रिपोर्ट है, अलर्ट्स हैं, तो आपका जो क्वेश्चन है मुझे लगता है फिर एक्सपायरी मैनेज करने के लिए वो आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। नहीं नहीं नहीं, आप समझे नहीं। जैसे अगर सिर्फ नियर 6 महीने की एक्सपायरी वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे स्टिकर लगा हुआ, तो हमें दूर से पहले पता लग जाएगा कि इन स्ट्रिप्स में से ये वाली स्ट्रिप जो है, ये वाला बैच जो है, ये पहले निकालना है पेशेंट को। ठीक। सर उसके और लिए बताइए। और दूसरा ये रहेगा कि जब हमारे जैसे डैशबोर्ड पे आपका आ जाता है कि ये नियर एक्सपायरी है, तो हमें बस उसको ही स्कैन करके डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर को वापस करना है, और मतलब कि वो भी पता लग जाएगा कि भी ये इस फलाने डिस्ट्रीब्यूटर से आया हुआ है। श्योर। सर तो इसमें एक दूसरा अलर्ट हमने यही मैनेज करने के लिए ऑलरेडी सेल्स में भी दिया हुआ है कि आप मान लीजिए जैसे कि एक ही प्रोडक्ट के आपके पास मल्टीपल बैचेस भी हैं ना, जो अगर हाँ नियर हाँ एक्सपायरी के हैं, हाँ। तो आपको वहाँ पे डिटेल मिलती है कि अगर आपके पास जो प्रोडक्ट आ रहा है तो ये एक्सपायरी का है। और बाय डिफॉल्ट हमारे सिस्टम में यही सेटिंग्स है कि जब भी आप प्रोडक्ट का सेल्स बनाते हो ना, तो वो बाय डिफॉल्ट नियर एक्सपायरी का बैच ही पहले आपके पास आ जाता है। नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल सही है नितेश जी, मगर मैं ये कह रहा था, जैसे मतलब कि इन द सेंस बैच नंबर जो है वो हमें स्ट्रिप पे जाके देखना पड़ेगा कि भी ये है बैच नंबर। आपका सिस्टम बता देगा कि ये नियर एक्सपायरी है, मगर वहां पे स्ट्रिप्स में जो है ना कस्टमर के सामने, मतलब इन द सेंस अगर हम फटाफट वो स्टिकर वाली ही पहले दे दें, क्योंकि हमें पता है कि वो नियर एक्सपायरी है, वो एक तरीके से कोड हो गया कि भी ये वाला प्रोडक्ट पहले निकालना है, या यस। फिर ये वाला प्रोडक्ट जो है बाद में जैसे स्कैन करके डिस्ट्रीब्यूटर को एक दिन में वापस कर दो ये। बट इसमें सर आपको दिक्कत क्या होगी ये चीज़ में कि आपको जो नियर एक्सपायरी के प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए भी आपको पहले सिस्टम से या फिर फिजिकली चेक तो करने ही पड़ेंगे सभी हाँ इन्वेंटरी पूरी। हाँ हाँ। तो इससे अच्छा क्या है, आप जो अगर आप हाफ हाफ क्यूआर रखते हैं, हाफ विदाउट क्यूआर रखते हैं, तो उसमें प्रॉब्लमेटिक्स ये हो सकता है कि वैसे भी आपको मेहनत उतनी ही लगने वाली है। बेसिकली हमारे पास काफ़ी ऐसे क्लाइंट्स थे कि जिन्होंने क्यूआर में इन्वेंटरी हाँ पूरी हाँ कन्वर्ट की है, और आपके तरह जो क्वेश्चंस था उनके मन में भी ऐसा ही था कि हम लोग एक्सपायरी मैनेज करने के लिए हाँ। इस तरह के कुछ मैनेज कर पाए तो। बट हाफ एंड हाफ मैनेज करने से उनका सब कुछ भी हल नहीं है। तो उससे अच्छा है कि आइदर यू कैन यूज़ द क्यूआर, और अगर आप ऐसे मैन्युअली मैनेज करना चाहते हैं तो सिस्टम अलर्ट्स की हेल्प ले सकता है। तो क्यूआर और हमें वी कैसे आर मैनेज करने में हेल्प करेगा? मतलब अगर हमने सभी पे लगा दिया, तो जैसे पेशेंट या कस्टमर सामने खड़ा है हुँ, और हमारे पास 6 स्ट्रिप्स हैं, हुँ। अब 6 के 6 पे स्टिकर है, तो हमें तो एकदम से दूर से देखने पे तो पता नहीं लगेगा ये वाली स्ट्रिप देनी है। नहीं, बट इसमें सर क्या होगा, जब भी आप प्रोडक्ट को सर्च करोगे ना, तो वहाँ पे जैसे ही आप सर्च करते हैं, वहाँ पे आपके पास जितना भी स्टॉक होता है, वो बैचेस में आपको वहाँ पे दिखा देता है। और अगर आप देखना चाहते हैं, तो आप देख भी सकते हैं। तो उसमें आप चेक कर सकते हैं कि मेरे पास अगर ओल्डेस्ट एक्सपायरी है, तो वो भी कर सकते हैं आप वहाँ पे। और दूसरा, अगर इसके अलावा जो हमारे पास एक सहाय में हमने फीचर दिया हुआ है, रिकमेंडेशन का। तो जैसे कि आपका एक ये भी सवाल है कि आपको एक्सपायरी का, अगर नियर एक्सपायरी के पास आपके पास कौन से प्रोडक्ट पड़े हैं, आपको वो कुछ प्रोडक्ट देना है उनको। तो उस तरह का, और या फिर मार्जिन का या फिर प्राइसिंग का, इस तरह से आप पूरा का पूरा बिल वो फीचर के रेफरेंस पे पूरा कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक वो भी सॉल्यूशन हमारे पास है। अगर आपको उसके लिए और भी जानकारी चाहिए, तो आप हमारे सपोर्ट नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। ये कॉल के बाद आपको उसमें और भी जानकारी मिल नितेश, सकती है। शायद आप समझ नहीं पाए, चलो ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ सिस्टम बता देगा कि हमारे पास ये है, यस। मगर मेरे सामने अगर 6 की 6 स्ट्रिप्स पे स्टिकर लगे हुए हैं, तो मैं दूर से नहीं देख के बता सकता कि ये वाली देनी है। मुझे फिर उसमें वो जो बारीक अक्षर में बैच नंबर देखना पड़ेगा। हुँ, हुँ। इससे अच्छा अगर वो स्टिकर तो आपका थोड़ा बड़ा है, वो अलग से दिखेगा। देन सर वी आर सजेस्टिंग, आपने बिल्कुल सही कहा, तो आप पूरी भी क्यूआर यूज़, वो सबसे बेटर, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन का कुछ नहीं रहेगा, उसपे नहीं है। वरना देखिए आपका भी एक स्टोर है या फिर ज़्यादा होंगे, मुझे भी पूरी तरह से आया तो स्टाफ के करूँ। एक ही फ्लो रहेगा कि परचेज़ आया है मेरे पास, क्यूआर उस पे प्रिंट करके मुझे करना है, तो वो बेटर रहेगा। ओ नितेश जी, मैं ये कह रहा हूँ जो परचेज आई है, अगर मैं नहीं हूँ तो परचेज वाली पे तो लगाना ही नहीं है। हमने तो आपके सिस्टम से देख के नियर हुँ, एक्सपायरी हुँ, वालों पे हुँ। लगाना है, वो भी किसी 6 महीने में एक बार बैठ के स्टिकर लगा दिए। तो शायद सपोर्ट कॉल में बात करूंगा, ठीक है। ठीक है। जी। सर आप इसके लिए ये कर सकते हैं, इन्वेंट्री में जो फ़िल्टर है नियर Uh, बाय एक्सपायरी का, anybody else? वहाँ से फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। If they have any questions regarding
default settings. Hello, hello. Yes, you are audible, Neelam. So I was Hello. just referring that अगर उनको नियर बाय एक्सपायरी पे प्रिंट करना है क्यूआर, so they can use the inventory filter that we have for nearby expiry. Could you just show them, Yeah. and then they can go for print QR. हनीश जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? और हाँ, मुझे ये शायद यही सोल्यूशन चाहिए था जो नीलम जी ने बता दिया। यस यस। बस इसमें एक प्रॉब्लम है, ये जो बल्क प्रिंट क्यूआर है ये हमारा नॉर्मल पेपर पे आ जाएगा क्यूआर, मतलब सारे इकट्ठे, या थर्मा वो आपका जो स्टैंडर्ड साइज है उसी पे आएगा? सर वो स्टैंडर्ड साइज पहले से स्पेसिफाइड किया हुआ है, तो आपको जो क्यूआर का जो रोल रहता है ना, हाँ हाँ। उसमें उसके अकॉर्डिंग ही आप उस पर प्रिंट कर पाओगे। ओके, नहीं एक बार आप इसको बल्क प्रिंट क्यूआर क्लिक करना, अगर मुझे ये ऐसे भी आ जाता है तो स्क्रीनशॉट खींच के मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा अगर। ओके, इसमें प्रिंट प्रीव्यू आएगा? यस आएगा। क्योंकि बेसिकली अगर प्रिंट प्रीव्यू भी आ जाता है ना तो मैं उसका स्क्रीनशॉट खींचकर यस, उसमें प्रिंट ये आपका कमांड दे दूंगा प्रिंट तो प्रीव्यू हो है। जाएगा। हाँ जी बिल्कुल। आया नहीं है, चलो आ जाएगा वैसे तो ठीक है। ठीक, ठीक है। ओके। Yes. Anybody else? If you have any questions regarding that. हेलो। Yes, सावन जी बताइए। एक चीज जानना था कि 3 महीना पहले जो बिल लॉक हो जाता है वो अनलॉक हो सकता है क्या? ओल्ड बिल। सर वो, हाँ, वो ऑनर आईडी में भी एक्सेस रहता है। जैसे कि आपने अगर ये जो लॉक होता है, हमने आपको लॉक के लिए बताया, वो सिर्फ जो स्टाफ आईडीज आप क्रिएट करते हैं ना, उसमें ये काम करेगा। अगर आपको अनलॉक करना है तो या तो फिर वो सेटिंग चेंज करनी पड़ी, अदरवाइज आप ऑनर आईडी में वो Nitish, I think they are referring to a अनलॉक ही रहता है different वो। lock. ओके। डिफरेंट लॉक। ओनर ओनर आईडी से हो सकती है ना? यस, बट The आपको सर invoices that are locked रीजन क्या रहेगा इसमें? automatically after 3 months, रीजन ये the है कि invoices जैसे are कि locked ओल्ड बिल automatically, कुछ right? अमाउंट का डिफरेंट ओके। है आफ्टर 3 मंथ से। आफ्टर 3 मंथ सर राइट। इट विल बी लॉक्ड ऑटोमेटिकली। इसके बाद तो वो ऑनर आईडी में भी एक्सेस नहीं रहेगा, बट इन बिटवीन दैट टाइम पीरियड इफ यू वांट टू यूज दिस दैट सेटिंग, सो इट विल वर्क लाइक दैट। ओके। एनीबडी एल्स इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस? और एक सर सर ईवाइडर को टैली से लिंक करने का कैसे है? फॉर द टेली इंटीग्रेशन, और इसके बारे में अगर आपको कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारे पास कंसर्न टीम है जो आपको पूरा गाइडेंस दे देंगे अभी। तो ओके आप ओके जो सर, हमारा मैं सपोर्ट बात टीम करूँगा। नंबर है, आप उस पर एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको हम कंसर्न पर्सन के साथ कॉल अरेंज करवा देंगे। राइट? ओके सर, ओके। श्योर। ओके मैम।
नितेश, एक चीज और मैं पूछना चाह रहा था। जैसे अभी तो जैसे हमने आपकी ऐप को जो है कस्टमर्स को रेकमेंड नहीं किया, क्योंकि हम अपना फुटफॉल इंक्रीज करना चाह रहे थे अपनी शॉप पे स्टार्टिंग में। मगर मैं ये जानना चाह रहा था कि बाकी सब फार्मासिस्ट या शॉप ओनर्स किस तरीके से कस्टमर को वो करते हैं। मतलब जैसे कोई कस्टमर आया तो उसका मोबाइल वेरिफिकेशन, ये लंबा प्रोसेस नहीं हो जाता? मोबाइल वेरिफिकेशन मीन्स जो कस्टमर ऐप है आप उसकी बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। ओके, सो सर इसमें कैसा रहता है कि अगर हमारे पास बेसिकली हमने सिस्टम में भी क्यूआर दे रखे हैं कि जिसमें, और दूसरा एक प्रोविजन आप कस्टमर को रेफर भी कर सकते हो कि लाइक अगर आपके कस्टमर को लिंक शेयर करना है डायरेक्टली जिससे वो अपना मोबाइल ऐप डाउनलोड करके आपके साथ कनेक्टेड हो पाए, तो वो दोनों प्रोविजंस है। नहीं, जैसे मेरे पास कस्टमर आया, मैंने उसका मोबाइल नंबर लिया और मैंने हाँ फीड किया और ओटीपी भेज दिया, तो हाँ। ओटीपी वेरीफाई कर लिया। अब हम्म। उसके बाद जब भी कभी वो अपने आप ईवाइटल ऐप डाउनलोड करेगा तो मेरी फार्मेसी से लिंक होगा ना फिर ये? आपने ओटीपी वेरीफाई किया है तो डायरेक्टली आपके साथ कनेक्ट होगा सर। ओके, मतलब हमें सिर्फ ओटीपी वेरीफाई करना है बस? इसके बाद सर उनको जस्ट एक फार्मेसी आई थिंक सेलेक्ट करनी होती है उनके उसमें स्टेटस में जाके, उनके मोबाइल ऐप में जाके। बट इसके वंस दे सिलेक्ट योर फार्मेसी, इसके बाद वो परमानेंटली कस्टमर आप ही के साथ कनेक्ट हो जाता है, यानी आपकी फार्मेसी उसके लिए प्रेफर्ड फार्मेसी रहती है। तो बेसिकली मैं यही पूछ रहा था कि ओटीपी वेरीफाई करने के बाद उसको फिर भी सिलेक्ट करना पड़ेगा हमें? इसके लिए मैं आपको क्लैरिटी इस कॉल के बाद भी दे सकता हूँ कि उनको किस तरह से ये प्रोविजन रहेगा, बिकॉज ठीक वी हैव अ सेपरेट टीम फॉर दिस। सो मुझे एक बार कंफर्मेशन लेके मैं आपको उसके लिए कंफर्म दे देता हूँ। ठीक ठीक ठीक। ठीक ओके। है। तो और एक चीज जानना, जैसे ई ई और ऑर्डर में जैसे कोई ऑर्डर करता है जी। तो ओनर के आईडी में तो साउंड आ जाता है ऐप में कि या कोई और ऑर्डर किया है कि साउंड रिकॉर्ड हो जाता है, तो जैसे स्टाफ का आईडी में क्यों नहीं होता? सर मतलब आप बजर की बात कर रहे हैं जब भी ऑर्डर आता है? जी 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 जी। ओके, मतलब जब भी ऑर्डर आता है तब आपको स्टाफ की आईडी में वो बजर साउंड नहीं करता है? नहीं नहीं, नहीं करता है। ओके सर, एक्चुअली वो हमें एक बार चेक करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। तो हम आपको चेक करके आपका जो कॉन्टैक्ट डिटेल है आप इस चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए, जी जी जी। हम लोग चेक करके आपको रिवर्ट बैक कर देंगे। ओके ठीक। अच्छा नितेश, एक चीज और, ये इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है कि यस। जैसे मैं हर रोज सुबह मोबाइल में ना, मुझे हर बार अपना मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन करना पड़ता है। अब जैसे कोई ई ऑर्डर आया, जैसे इन्होंने पूछा, तो उसकी नोटिफिकेशन तो तब आएगी जब मैं लॉगिन होऊंगा। हनीश जी, एक चीज़ मैं सिर्फ कहना चाहूँगा, ये कॉल हम बेसिकली क्या रहता है, प्री डिफाइंड रहता है कि आज हम किस सब्जेक्ट और किस टॉपिक के बारे में कॉल लेने वाले हैं। तो अगर आपको ई ऑर्डर के रिगार्डिंग और भी काफ़ी सारी क्वेरीज हैं, तो मुझे लगता है कि आई एम नॉट अ करेक्ट पर्सन, तो मुझे आपको कंसर्न पर्सन के साथ कनेक्ट करवाना होगा जिसके लिए आपका वो कॉल प्रोडक्टिव रहेगा। नहीं 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 नितेश सो जी, आप समझे नहीं। ये जो लॉगिन वाली है, ये मेरे ख्याल से आपने कोई सेशन ना लेना है ना आगे शेड्यूल है, ये बिल्कुल सेपरेट प्रॉब्लम है कि हाँ, हर रोज लॉगिन करना पड़ता है। मतलब कि कई बार ऐसा होता है, जैसे दूसरी एप्स होती हैं, वो हम सिर्फ क्लिक करते हैं, वो ऑटो लॉगिन ही होती है पहले से ही। मतलब आप सर जो डेली लॉगिन करते हैं सॉफ्टवेयर में उसके बारे में बता रहे हैं? हाँ, मोबाइल में जैसे हमारे पास जो ऐप है ई वाइटल RX, तो उसमें जो है, अगर मैं जैसे आज फॉरगेट कर गया, मैं मोबाइल में लॉगिन नहीं किया, मैं वेब पोर्टल से ही काम कर रहा हूँ, हम्म। तो बाद में जैसे बंद करके चला गया तो मुझे दोबारा जो है लॉगिन यस। करना पड़ता है। यस, वो सर हमने ऑलरेडी इसमें ये एक्टिवेट किया हुआ है इस तरह से। उसका रीजन सर सिक्योरिटी पार्ट का ही है कि मान लीजिए कभी कभार जैसे कि हमारे पास तो कभी कभार आपने लॉगिन करके छोड़ दिया, जो हमने ऑनर आईडीज बनाई हुई हैं, स्टाफ आईडीज बनाई हुई हैं। मान लीजिए ऑनर ने कभी कभार लॉगिन करके छोड़ दिया, उसके बाद उनको लॉग आउट करना रह गया, तो वो अकाउंट में से वो कुछ भी एक्टिविटी हो सकती है ना। तो तो इसके लिए हमने ये ऑटो लॉग आउट का दिया हुआ है कि जब भी आप मॉर्निंग में फिर स्टार्ट करेंगे सिस्टम को, तो एक बार आपको वो लॉगिन करना रहेगा, और जिसमें एक तो सिक्योरिटी ऐसे पर्पस है ये। ऐसे फिर ई ऑर्डर जो आएंगे, वो तो तभी हमें दिखेंगे ना जब हम लॉगिन होंगे। हाँ, तो सर आप तब लॉगिन कर सकते हैं ना, सेम थिंग। ओके, लॉग आउट कब होता है ये इवनिंग में? मुझे कुछ आइडिया बता सकते हो कि वो? इवनिंग आफ्टर 12 रहता है सर। आफ्टर 12, ठीक है। ठीक।
तो ई ऑर्डर्स का जो नोटिफिकेशन है ना वो आपको वेब पे भी आता है, तो ऐसा नहीं है कि आप कोई नोटिफिकेशन मिस आउट करेंगे अगर आप फोन में लॉगिन नहीं कर रहे हैं तो। एंड एज सुन एज आप फोन में लॉगिन कर भी रहे हैं ना, सबसे पहले डैशबोर्ड पे ई ऑर्डर्स ही दिखते हैं आपको। ओके, ठीक ठीक। यस इशाक जी। Yes, hi. I was a little late to the meeting, but आप थोड़ा recap कर पाएंगे क्या हुआ था? If you don't mind. Yeah, sir, basically today we are here to discuss the default settings, जहाँ पे आपके जो डेली ऑपरेशन सेल रिटर्न परचेज एंड परचेज रिटर्न के रिगार्डिंग जो भी सेटिंग्स रहती है ना, तो उसमें आप किस तरह से उसको मैनेज कर सकते हैं, लाइक सेल्स बिल को लॉक करना, अदरवाइज जो भी कस्टमर नंबर सिक्योर करना। तो मैं आपको एक बार गो थ्रू कर देता हूँ। Okay, I got it. या And I wanted one more feature to be added, like a request. Uh, schedule drugs पर या फिर we should be able to select certain contents or salt compositions जिस पे e pin पूछे during selling. ओके, Is, सो is that बेसिकली possible? हाँ, आप yeah, बोलिए. that is a part of the scheduled products and narcotics, like that. Yeah. So sir, basically we have the provision in the settings कि आप एक बार वो setting on कर देंगे, so at तो there क्या they आप will वो सिक्योरिटी के अंडर आएगा ना? आप बता सकते हैं किधर आएगा? so सर आप ई पिन के लिए कुछ ऐसा बोल रहे थे, आप एक बार क्वेश्चन आपका कंप्लीट करेंगे प्लीज। हाँ, मतलब we should be able to ये क्या बोल रहा था मैं? हाँ, ई पिन सेट ई पिन फॉर सर्टेन सॉल्ट कंपोजिशंस और ये बट जैसे सर अल्प्रोजोलम. सर मैं आस्क व्हाई ई पिन रिक्वायर्ड, मतलब आपका किस तरह से सेटअप है अभी? राइट नाउ अगर स्टाफ बिल बनाती है विदाउट पेशेंट का नाम, इट गोज ओके ओके एंड रिपोर्ट आती है, बट दैट इज आफ्टर द प्रोडक्ट इज सोल्ड रिपोर्ट आती है, सो इट डजंट ये है. तो मैं क्या बोल रहा था, सिक्योरिटी पर्पस के लिए व्हेन दैट प्रोडक्ट इज बीइंग सोल्ड इट शुड आस्क फॉर अ पिन, दिस स्पेसिफिक पिन, ये प्रोडक्ट्स. सो सर बेसिकली सर स्केड्यूल्ड प्रोडक्ट्स में कैसा रहता है कि आप जब भी इस तरह के कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं ना, तो हमें सिस्टम में रहता है कि आप कस्टमर जो डिटेल्स है वो आप ऐड करके ही और डॉक्टर का नाम ऐड करके ही आप बिल को सेव कर सकते हैं। ओके, यस, बट so if there is any scheduled products, so you will be get the report of the बट patient. इट आस्क फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स ना, वैसा अगर वैसा है तो ऑल शेड्यूल प्रोडक्ट्स, सम Uh, शेड्यूल प्रोडक्ट्स विदाउट नेम भी जाते हैं. hmm. Okay, so Uh, we should be able to have the control so that I नहीं ये कंटेंट का मुझे पिन पूछना पड़ेगा स्टाफ मुझसे, so that I can verify okay बिल ठीक से बनाया है, कस्टमर का नाम सब डाला है और ओके कस्टमर का प्रिस्क्रिप्शन भी वैलिड है, then I should be able to dispense the medication or okay. Currently also you have noticed in our system about the scheduled products are selling your staff without any customer details. yes. Okay. Neelam, hello. Neelam, I think we have scheduled products for the doctor name compulsory. Also, we are including the patient details, right? Yes, could you also check that right away so we can be just sure? Just turn Yes, on sure. the settings and then So let's say I have compulsory. Yeah.
Hello. Hello, yes. Yes. So, sir, see, I have turned on the setting once which we have given here. Okay. And it's not letting you save the bill. Yes. If you Okay. have turned on this setting about doctor name compulsory for all drug products. So Mm-hmm. once you turn on this setting, oh sorry, doctor name compulsory for scheduled products. Okay. So once you turn on this setting, your staff can't be able to sell this product without adding customer details here. And, okay, that is there. What I was saying is, even though there are some products, customer name leke bhi, agar we are selling, Yeah. the prescription won't be proper, this thing won't be proper. And I'm saying that reason. अगर मैं नाम भी डालूं तो हाँ. wrong है. वैसे भी होता है. तो Oh, I need to verify it. और pharmacist has to verify it. okay. वैसा कुछ सिस्टम आए पिन पूछे so that I can see the bill. Sir, That's verify what means also we require a mobile number as well in this. So, एक्चुअली are ये you ये कह रहे हैं कि जैसे आपके अपलोड के फीचर में कोई भी पेज अपलोड कर दिया तो वो आपका सिस्टम कहेगा कि प्रिस्क्रिप्शन अपलोड हो गई। ये वेरीफाई करना चाहते हैं कि भी प्रिस्क्रिप्शन वही है, सेम है या नहीं है। but इसके लिए yeah, सर yeah, एक exactly. but there Like is also a hurdle. मुझे पिन आना चाहिए यार. सर इन दिस पिन इसमें कैसा रहेगा कि प्रिस्क्रिप्शन में भी अगर इस तरह का कोई फीचर लेट से अगर होता भी है तो उस प्रिस्क्रिप्शन है एक्चुअली या नहीं है या फिर कोई ऐसे इस तरह का ही कोई ब्लैंक पेज है तो वो कैसे वेरीफाई होगा बिकॉज टू जस्ट Then we won't dispense it. We won't सॉरी dispense if nothing is proper. या And we are staff क्या करते हैं? They just see and they just give it sometimes. यस But I need to be 100% sure because problem तो मुझे ही आएगी. यस सर So बिकॉज that यू is yeah. बट सर इसमें हमारे पास इसका जो पूरा रिपोर्ट निकलता है और इसमें हमारे पास पूरे स्टाफ के लॉग्स भी रहते हैं राइट तो आप जब भी वो बिल्स के साथ चेक करोगे तो वो प्रिस्क्रिप्शन हमारे पास उसमें बिल के साथ अटैच ही रहता है सो यू कैन But इजीली वेरीफाई अबाउट द स्टाफ हैज डू द करेक्ट जॉब और नॉट लाइकवाइज नहीं but वो तो हो गया सेल के बाद हो जी गया ना. I want to do it before sale. No, I don't. सर बट Yeah, यू आर that एब्सोल्युटली is what राइट I'm asking. yeah you are right sir but somewhere you have to uh, tell to the staff to verify the prescription and all things क्योंकि इसमें सर कैसा रहेगा कि उसको वेरीफाई करने के लिए हमको प्रिस्क्रिप्शन में डिटेल्स क्या है वो भी तो वेरीफाई करनी होगी ना because to just to check the prescription is uploaded or not that is not a complete thing नीतीश, ऐसा कर सकते हैं हम कि कुछ ड्रग्स जो इनके पास हैं मेडिसिन, वो उनको सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर ही सेल कर सके। कुछ ऐसा सिस्टम कर सकते हैं हम आपके सिस्टम में, क्योंकि but जैसे sir अबॉर्शन की पिल्स हो गई, वो बिना गायनेकोलॉजिस्ट की मतलब प्रिस्क्रिप्शन के, या साइकेट्रिक मेडिकेशंस होगी जो बिना साइकेट्रिस्ट की प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दे सकते, तो वो अगर सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर या किसी एक पर्सन के हाथ में ही हो, वो वाली कैटेगरी। यस बट सर इसमें कैसा रहता है हर फार्मेसी का सिनेरियो अपना अपना है राइट तो हम अगर इस तरह से प्रोडक्ट रिस्ट्रिक्शंस अगर सेल करने पे लगा देंगे तो वो हमारे लिए भी प्रॉब्लमेटिक है सो नहीं नहीं, ऑल्सो कैटेगरी पूरी पूरी एक कैटेगरी बना सकते हैं यस कि भाई ये कैटेगरी सिर्फ यही पर्सन सेल कर सकता है। बट सर इसमें हमारे पास कैसा स्टोर्स 24/7 भी रनिंग करता है राइट तो अगर हम लोग वो कैटेगरी का जो परमिशन है अगर वो कंसर्न पर्सन तब अवेलेबल नहीं है और वो सेल नहीं कर पाएगा तो देयर इज आल्सो प्रॉब्लमेटिक राइट तो इसके लिए हाँ, हमको एक सिस्टम ही ऐसा बनाना पड़ेगा जैसे कि सर का प्रॉब्लम है कि स्टाफ जहाँ पे मिस्टेक्स कर रहा है कि जहाँ पे स्केड्यूल प्रोडक्ट में जो डिटेल्स होनी चाहिए एक्चुअल प्रिस्क्रिप्शंस होने चाहिए वो नहीं है तो मुझे लगता है वो हमको स्टाफ को थोड़ा सा ट्रेन करना पड़ेगा इस चीज के लिए तब जाके वो सिस्टमेटिकली क्योंकि सिस्टम और स्टाफ का कॉर्पोरेट दोनों के साथ में ही मतलब कॉर्पोरेट करने से ही पूरा परफेक्ट वर्क होगा सो इन दिस केस वी रिक्वायर्ड आल्सो स्टाफ सपोर्ट एज वेल Nitish, I think we have understood the problem on a deeper scale, and I think we can discuss this with our senior management, and we would No definitely problem. try to come up with some kind of Yeah. solution for this. Yes. Sir, can you just add your mobile number to contact so we can discuss this thing with our management so if they can give you the alternative solution for your problem. So, hello? Okay. Okay, yeah, done.
So anything else? हेलो Yes, हितेश जी बताइए। मेरे को मैं ये पोर्टल में एपीआई कीज गेट करने की कोशिश कर रहा था लॉगिन करने के बाद, बट मैं जैसे बताया गया है कि आप रजिस्टर करके सब्सक्राइब करो, फिर उसके बाद सेटिंग्स में जाओ, तो वहाँ कोई मैं सेटिंग्स में ढूंढ रहा हूँ, कोई ऑप्शन ही नहीं है लॉगिन कर वो एपीआई कीज गेट करने का। सॉरी सर, आप क्या करने के ट्राई करते हैं, मतलब कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? एपीआई की API key for what? एपीआई की फॉर ये एपीआई फॉर प्रोडक्ट कैटलॉग एटसेट्रा। For a product catalog? Sir, if you यस। just want to use the software and get the products, you will not need any API key for that. Do you have a pharmacy? नो नो नो। So यस यस। you have a सी pharmacy, right? यस यस। You will not be needing any kind of API key to use the software at all, sir. Once you start uploading your purchase, the product would automatically start appearing in your inventory. No. Currently, I need APIs to integrate it with my system. What kind of system are you using? Uh, mm, uh, um, Helic. Helic is the product we are developing, and we are using your eVital already. So I need the APIs to integrate it with Sir, are my you in system. touch with someone नितेश about this? No, no. नितेश जी, Okay, आई so थिंक why don't you एपीआई जो please है आपकी drop वेबसाइट का your यूनिक होगा। अगर आप वो शेयर कर दोगे तो आपके वेबसाइट पे चेंजेस आ जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है एपीआई का मीनिंग। मैं Yes एपीआई sir. की शेयर नहीं करूँगा, बट मैं एपीआई की तो गेट कर पाऊँगा। मेरी एपीआई की मेरे को मिल नहीं रही है, जैसा कि डॉक्यूमेंटेशन में बताया गया है कि सेटिंग्स में जाके आप गेट कर लो। सब्सक्राइब किया हुआ है, बट फिर भी नहीं गेट कर पा रहा। Oh, we would help you हितेश जी, about that. एपीआई Just की please drop देखिए, your contact number आपका and अकाउंट I'll आपका get you नहीं है। connected with some ई concerned वाइटल person. ई वाइटल आरएक्स जो है वो वेबसाइट है, वो आपका अकाउंट सब्सक्रिप्शन बेस पे आपको दे रही है। 1 साल बाद आपको रिन्यू करना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन। आप ओनर नहीं हो, मेरे ख्याल से ठीक है। एपीआई की ओनर के पास होती है, ओके, ओनर के पास। ओके, जो मतलब उस अकाउंट का ओनर है। जो उस वेबसाइट या ऐप का ओनर है शायद। आई थिंक, मतलब आई मे बी रॉन्ग, बट मुझे जैसा लगता है वो यही है कि आप जो इंटीग्रेट करना चाह रहे हो वो आप सपोर्ट टीम के थ्रू, उनकी परमिशन के थ्रू ही कर पाओगे। अच्छा, मतलब मेरे को ई वाइटल से कांटेक्ट करना पड़ेगा, जो मतलब सपोर्ट टीम है उनके, उनसे। ओके। ओके, आई विल डू इट। अच्छा नितेश जी, एक कॉम्प्लीमेंट है मेरी तरफ से कि Yes आपका please. ये जो मतलब आपकी पूरी टीम जो है काफी मतलब वर्क कर रही है, दिख भी रहा है, और रोज 4 बजे मीटिंग हो रही है। तो ये जो आपके नए नए फीचर आ रहे हैं, तो आप कुछ ऐसा तो प्लान नहीं कर रहे कि अगले साल जो है सब्सक्रिप्शन 50% हाइक कर दो प्राइस का? सर प्राइसिंग के लिए आप बेफिक्र रहें। 50% के लिए जैसे अभी आपने बात की, तो हमारे इसके बारे में जस्ट मैं आपको जानकारी दूंगा कि हमारे लीगल डॉक्यूमेंट्स पे भी हमने जो वेबसाइट पे रखे हुए हैं, हमने उसमें ऑलरेडी कमेंट किया हुआ है कि अगर कभी भी प्राइसिंग बढ़ता भी है 1 साल में, तो 10% से ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। सो ओके, डू नॉट 10% वरी इज अबाउट दैट। ओके। So anybody else, if you have any questions? Okay. Okay, thank you so much everyone to join this call. Have a good day.